Good afternoon, students. Good afternoon, ma'am. So today we are going to learn the new poem number 4, that is How to Tell Wild Animals. Okay, this poem is written by Caroline Wells. Okay, Caroline Wells was an American writer, was an American poetess. Okay, and she has written numerous of poems in a funny way. Okay, she has written about 170 poems as well as some chapters which are related to fun. Okay, which are related to fun for the children. She was born on 1862 in New Jersey in America. Okay, so this is the introduction of the poetess Caroline Wells. Okay, so how to tell wild animals, what this subject tells you, how to tell wild animals, what the heading, how to tell wild animals, क्या मतलब है इसका? हम वाइल्ड एनिमल्स को, जंगली जानवरों को कैसे पहचाने, ठीक है, कैसे उनको पहचानेंगे। अब हम जंगली जानवरों को कैसे, उनके सामने जाएंगे तो क्या होगा, वो तो हमें मार देंगे ना। तो यहाँ पर जो कैरोलिन वेल्स है, उन्होंने ऐसा हमको क्यों समझाया है, उन्होंने हमको ऐसा क्यों बताया है कि अगर आपके सामने कोई शेर आ जाए, कोई बाघ आ जाए, ठीक है, कोई आपके सामने चीता आ जाए, तो आप उसको किस तरीके से रिकॉग्नाइज करोगे, क्योंकि हम लोग तो जैसे उसके सामने जाएंगे इट विल अटैक ऑन अस, है ना, वो हमें अटैक करेंगे। तो उन्होंने ये पोयम हमें ह्यूमरस वे में समझाई है। ह्यूमरस वे मीन्स इन अ फनी वे, बहुत फनी वे में उन्होंने हमें ये पोयम एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि जिससे जो रीडर्स हैं उनको क्या ना हो, बोरियत ना हो, दे डिड नॉट फील बोर्ड व्हेन दे आर studying and the teachers when they are teaching. Okay, so how to tell wild animals, wild animals कैसे होते हैं, ठीक है, उनका क्या बिहेवियर होता है, किस तरीके से हम उनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ओके, बिफोर स्टार्टिंग लेट्स रीड द पोएम। if ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. Or if sometime when roaming around, a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. If strolling forth a beast you view, whose hide with spot is peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. 'Twill do not good to roar with pain, he will only lap and lap again. If when you are walking round your yard, you meet a creature there who hugs you very, very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he will give you just one more caress. Though to distinguish beast of prey, a novice might nonplus, the crocodile you always may tell from the hyenas thus. Hyenas come with merry smiles, but if they weep, they are crocodiles. The true chameleon is small, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, 'tis the chameleon you see. Okay, so this is the whole poem. So इस poem के अंदर अगर हम देखें तो फर्स्ट पैराग्राफ में किसके बारे में बात कर रहे हैं, एशियन लायन के। ओके, तो इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल इन द ईस्ट, अगर आप ईस्ट में कभी बाय चांस जंगल में जा रहे हैं, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टाउनी बीस्ट, एक बड़ा सा आपके सामने कोई जानवर आ जाता है, अ लार्ज मीन्स बड़ा, टाउनी मीन्स हियर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाउनी, गोल्डन ब्राउन कलर। ओके, गोल्डन ब्राउन कलर एनिमल। अगर कभी आपके सामने, आप जंगल में गए हो, ईस्ट के जंगल्स में गए हो, और आपको क्या मिल जाए, आपके सामने क्या दिख जाए, आपको एक बड़ा सा, ठीक है, कौन से कलर का, गोल्डन ब्राउन कलर का एक एनिमल आपको मिल जाए। इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, अगर वो आपके ऊपर दहाड़ रहा है, ठीक है, आपके सामने आके आपके ऊपर दहाड़ रहा है, और उस दहाड़ से अगर आप मरने लग जाओ, तो समझ जाना वो क्या है, एशियन लायन। तो वो क्या है, एशियन लायन, बिकॉज द लायन रोर्स, लायन क्या करता है, दहाड़ता है, चिल्लाता है, ठीक है।
अब नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं, इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. Okay, अगर आप कभी घूम रहे हो, ठीक है, वहीं जंगल में आप फिर आगे बढ़ गए हो, फिर आगे आप घूम रहे हो, तो क्या है, a noble wild beast. Noble means great, महान, ठीक है, noble means great, महान. एक आपको क्या मिल जाए, एक आपको आगे चल के एक वाइल्ड बीस्ट मिल जाए जो कैसा है, महान है, जो आगे से आके आपको क्या करने वाला है, आपको खुद ग्रीट करने वाला है. ग्रीट करना मतलब आपको रिस्पेक्ट दे रहा है, ठीक है. विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड. हेयर ग्राउंड मीन्स बॉडी. ओके, सो विद ब्लैक स्ट्राइप्स, उसकी बॉडी पे कैसे स्ट्राइप्स है, ब्लैक स्ट्राइप्स है, और उसकी बॉडी कैसी है, येलो कलर. मीन्स उसका जो फर है बॉडी का वो कैसा है, येलो है. जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू. अब नोटिस करना कि वो अगर आपको खा जाए तो दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न. तो ये एक सिंपल सा रूल है जो आपको क्या बताएगा, वो क्या है, बंगाल टाइगर. डिस्कर्न मीन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्कर्न, टू रिकॉग्नाइज. ओके, टू रिकॉग्नाइज. ओके, सो इट इज पॉसिबल कि आपके सामने टाइगर आ जाए और आप उसको पहचानने की, आप उसको पहचानोगे, इतनी देर में तो वो आपके सामने आएगा और आपको क्या कर जाएगा, खा जाएगा, ठीक है. बट यहाँ पे जो हमारी पोएटेस है कैरोलिन वेल्स, वो इसको फनी वे में आपको बताना चाह रही हैं कि अगर आपके सामने कभी क्या आ जाए, टाइगर आ जाए, कभी आपके सामने क्या आ जाए, एशियन लायन आ जाए, तो वो किस तरीके से आपके साथ बिहेव करेंगे. अंडरस्टूड? ओके, नाउ मूविंग टू द next paragraph. If strolling forth a beast you view, whose hide with spot is peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. 'Twill do not good to roar with pain, he will only lap and lap again. If strolling forth, what is the meaning of strolling forth? Moving, what? Moving, walking forward. Okay. If strolling forth a beast you view, whose hide with spots is peppered as soon as he has leapt on you. अब आपको क्या दिख रहा है, अब आप आगे चल रहे हो, आपको एक बीस्ट दिखाई देता है. वो बीस्ट कैसा दिखाई दे रहा है, विथ स्पॉट इज पेपर्ड. पेपर्ड मीन्स कवर्ड. पेपर्ड मीन्स कवर्ड. ओके, जो उसकी जो हाइड है, उसकी हाइड मीन्स जो उसकी स्किन है, वो पूरी तरीके से किससे कवर्ड है, ब्लैक स्पॉट से. एज सून एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, जैसे ही वो आप पे लेफ्ट करेगा, लेफ्ट मतलब झपट्टा मारेगा. ओके, यू नो इट इज द लेपर्ड. तो आपको समझ में आ जाएगा वो क्या है, लेपर्ड है, क्योंकि लेपर्ड कैसे अटैक करता है, झपट्टा मार के. ओके, ट्विल डू नॉट गुड टू रोर विथ पेन. ट्विल मतलब इट विल. ओके, इट विल डू नॉट गुड टू रोर विथ पेन. अब अगर आपके ऊपर वो झपट्टा मार रहा है ना, तो आप चिल्लाना मत दर्द से, ठीक है, रोना मत. क्यों? क्योंकि जितना आप चिल्लाओगे वो उतना ही आपको क्या करता रहेगा, आपके ऊपर चढ़ता ही रहेगा और आपको तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक वो आपको मार ना दे. तो यहाँ पर भी पोएटेस क्या समझाना चाह रही हैं फनी वे में, कि जो आपका लेपर्ड है वो क्या कर सकता है, वो आपके ऊपर लेफ्ट कर सकता है, आपके ऊपर कूद के एकदम से आ सकता है और वो आपको टिल डेथ वो आपको नहीं छोड़ने वाला है. चाहे आप चिल्लाओ, चाहे आप रो, वो आपको नहीं छोड़ेगा. अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट. इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड यू मीट अ क्रिएचर देयर who hugs you very very hard, be sure it is a bear. अब आप वापस आगे कहाँ चल रहे हो, जंगल में चल रहे हो या आपके घर के आसपास. यार्ड मीन्स एन ओपन एरिया, ठीक है, कोई ओपन एरिया है आपके घर के आसपास, ठीक है, या आप फॉरेस्ट में ही आगे किसी ओपन एरिया में चल रहे हो और आपको एक क्रिएचर मिलता है हु हग्स यू वेरी हार्ड, जो आपको बहुत टाइटली हग कर लेता है, ठीक है, आपको कस के पकड़ लेता है. बी श्योर इट इज अ बेयर. उसको क्या समझ जाओ कि वो क्या है, वो है बेयर. ओके, इफ यू हैव एनी डाउट आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स. और आपको लगता है कि नहीं पीछे बेयर नहीं है, कोई और है, किसी और ने आपको आके हक किया है, तो आप पीछे मुड़ के देखना, वो वापस से आके आपको क्या कर लेगा, टाइट से हक कर लेगा. ठीक है, जस्ट वन मोर केयर्स मतलब मोर हग, मोर लव. ओके, सो थर्ड पैराग्राफ में क्या बोल रहे हैं पोएटेस
कि अगर आप आगे जंगल में चल रहे हैं और आपको एक जिसकी स्किन पर ब्लैक कलर के स्पॉट्स हो और वैसा आपको क्या दिख रहा हो, एक क्रिएचर, एक बीस्ट आपको दिख रहा हो, तो समझ जाना वो क्या है, वो लेपर्ड है। और लेपर्ड क्या करेगा, आपको आपके ऊपर आके कूद जाएगा, ठीक है, आपको कूद जाएगा और तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक आप मर ना जाओ। और नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बोल रहे हैं आपको पोएटेस, कि अगर कोई आपको आके एकदम से हक कर लेता है, आप कहीं खुली जगह में हो, चाहे अपने घर के बाहर हो, ठीक है, या आप जंगल में ही कहीं पर हो और आपको कस के अगर टाइट से कोई क्रिएचर आपको पकड़ लेता है, देन इट इज अ बेयर। अगर आपको कोई डाउट लगता है कि नहीं वो बेयर नहीं है, तो आप एक बार पीछे मुड़ के देखो तो आपको पता चल जाएगा। वो आपको, आप छुड़ाने की कोशिश भी करोगे तो वो आपको और ज्यादा कस के क्या कर लेगा, पकड़ लेगा। ओके, दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे। बीस्ट ऑफ प्रे क्या होते हैं? विच आर द बीस्ट ऑफ प्रे? एनिमल दैट ईट, दैट किल्स अदर एनिमल। दो टू डिस्टिंग्विश। अब डिस्टिंग्विश का मतलब क्या होता है? आइडेंटिफाई और टू आइडेंटिफाई। दो टू आइडेंटिफाई बीस्ट ऑफ प्रे। अगर आपको आइडेंटिफाई करना है बीस्ट ऑफ प्रे का, अ नोवाइस माइट नॉन प्लस। अ नोवाइस मीन्स अ पर्सन हु इज न्यू, अ पर्सन हु इज न्यू टू आइडेंटिफाई, हु इज न्यू टू आइडेंटिफाई। कोई पर्सन, कोई इंसान जो नया है इन एनिमल्स को क्या करने में, आइडेंटिफाई करने में। माइट नॉन प्लस, माइट शायद वो क्या हो सकता है, कंफ्यूज, ठीक है, वो कंफ्यूज हो सकता है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हाइनास दस। ओके, मतलब जो क्रोकोडाइल है और हाइनास, उसमें डिफरेंस क्रिएट करना कहीं ना कहीं उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। हाइनास कम विद मेरी स्माइल्स। हाइना के फेस पर हमेशा क्या होती है, स्माइल होती है। वो जब भी अपना शिकार करती हैं उनके मुंह पे हमेशा स्माइल होती है। बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स। और अगर वो रो रहे हैं तो समझ जाओ वो कौन है, वो है क्रोकोडाइल्स, ठीक है। तो इस पैराग्राफ में क्या बताया है कि वो पर्सन जो अभी नया है किस टास्क में, टू आइडेंटिफाई, टू क्रिएट अ डिफरेंस बिटवीन हाइना एंड क्रोकोडाइल। सो ही माइट गेट कंफ्यूज, वो कंफ्यूज हो सकता है बिटवीन क्रोकोडाइल एंड हाइना। बट यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, दैट hyenas come with smile, they kill their prey with their smiles, and crocodiles are always crying while killing their prey. जो crocodiles होते हैं वो हमेशा क्या करते रहते हैं, अपने शिकार को मारते हैं और रोते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस उन दोनों में होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल। आप इसको कैमेलियन भी बोल सकते हो, चैमेलियन भी बोल सकते हो, टोटली डिपेंड ऑन यू। ओके, द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, ठीक है। जो कैमेलियन होता है जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, गिरगिट, ठीक है। गिरगिट जो होता है वो स्मॉल होता है, यू कैन सी इन द पिक्चर, स्मॉल होता है, छोटा सा होता है। अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, जो किसकी तरह लगता है, छिपकली की तरह लगता है। बस छिपकली क्या है, वो दीवार पर, जमीन पर चलती दिखाई देगी, या आपको ज्यादातर पेड़ों पर दिखाई देगा। He hasn't any ears at all, उसके कोई कान नहीं होते हैं, ठीक है। And not a single wing, और उसके विंग भी नहीं है, पंख भी नहीं है। If there is nothing on the tree, 'tis the chameleon you see। अगर आपको पेड़ पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो वहां पर क्या हो सकता है, वहां पर चैमेलियन या कैमेलियन हो सकता है। बिकॉज जो ये आपका कैमेलियन होता है, इट टेक्स द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन विच इट सिट्स। जिस ऑब्जेक्ट पर ये बैठता है उस ऑब्जेक्ट पर ये अपना, उसी ऑब्जेक्ट का ये कलर ले लेता है। तो बेसिकली ये कहाँ पाया जाता है, ज्यादातर जहाँ पर ग्रीनरी होती है। तो ये बेसिकली ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है अगर ये आपको ट्रीज के आसपास दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो हियर योर पोएम इज कंप्लीट, एंड दिस पोएम इज बेसिकली टेलिंग यू अबाउट द फीचर्स ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स। जो जंगली जानवर होते हैं उनके क्या फीचर्स होते हैं, आप उनको कैसे पहचान सकते हो, ये इस पोएम में बताया गया है। ओके, नेक्स्ट इज द राइमिंग स्कीम। ओके, व्हाट इज द राइमिंग स्कीम? राइमिंग स्कीम के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, राइमिंग स्कीम के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लास्ट के वर्ड्स, चांस ए, ईस्ट बी। चांस यहाँ पे क्या है, एडवांस, चांस एडवांस, सेम साउंड, ईस्ट बीस्ट, बी
If he roars at you as you are dying lion, तो dying lion बोलते हैं हम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? C. तो what is the rhyming scheme of the poem? A B C. This is the rhyming scheme of the poem. Okay, understood? So here your poem is complete. We will continue the next poem in our next class.